So let's learn today past perfect tense. In past perfect tense, we use had. Okay, now I'll switch it off. So had is used not only in past perfect, it has some other usage also. So first we will learn that. It has different usage. First one is for possession. What is possession? पोजेसिव वर्ड होता है ना, उसी से पोजेशन बना है. जैसे कि हमें कोई चीज बहुत पसंद है, ये मेरी ही हो सकती है, ये किसी की नहीं हो सकती. बॉयज यूज फॉर गर्ल्स, इवन किड्स यूज फॉर टॉयज. बहुत पोजेसिव होते हैं कि मेरे ही है, मैं किसी को नहीं दूंगा ये. तो पोजेशन मीन्स यू आर द ओनर ऑफ दैट थिंग, सिर्फ आपका ही है. तो कोई भी चीज आपकी थी, देन वी यूज हैड. अभी है तो आप क्या यूज करोगे? हैव. आई हैव क्रेटा राइट नाउ, बट in 2004 I had Maruti 800. ठीक है, so like this. कोई भी चीज थी आपके पास, अब नहीं है, so for that you will use had. Like they had 2 flats earlier. उनके 2 flats थे पहले, मे बी अब 4 हो गए हो या अब एक भी ना हो, it depends. Now had for eating also. As you say I ate my breakfast, then I tell you that इसको ate मत बोलो, यहाँ पे had लगाओ. I had my breakfast. It sounds more sophisticated. Ate की जगह, है ना? I had my lunch. Suppose मैंने आपसे पूछा please have samosa और please have dosa. Then you say no 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 ma'am, I had my breakfast. मेरे को नहीं खाना. Like this. Then had to. Had to मतलब करना पड़ा, मजबूरी. मजबूरी की इंग्लिश? I told you English of मजबूरी. ये मेरी मजबूरी थी या मेरी मजबूरी है. Compulsion, it is written here. Compulsion. ओके, मजबूरी इज कंपल्शन. सो कोई भी आप काम आपने मजबूरी में किया था, फॉर दैट यू विल यूज हैड टू. लाइक रोहित शर्मा हैड टू टेक द लीव. रोहित शर्मा को लीव लेनी पड़ी बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मतलब वो बीमार था, इसलिए उसको लीव लेनी पड़ी, मजबूरी थी उसकी. देन वी यूज हैड टू. और प्रेजेंट में होता है तो हैव टू. आई हैव टू गो देयर, मुझे जाना पड़ेगा वहां पे, है ना? Okay, let's come back to past perfect now. Where do we use this past perfect tense? It is used for remote past. Remote past means, remote क्या होता है? What is remote? दूर से ऑपरेट करते हैं ना, that is remote. Okay, so remote past मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हो आप इसमें. So the rule is subject, had, main verb, third form and object. And Shubha, third form is not difficult to remember. क्यों? क्योंकि 80% में तो ed लगता है. कुक में ed लगा दो, थर्ड फॉर्म हो गया. प्ले में ed लगा दो, थर्ड फॉर्म हो गया. So it's not difficult. Only 20% जो irregular forms of verbs बोलते हैं जिन्हें, that you have to learn. बस वो एक दिन बैठ के याद कर लो, 2-3 दिन लगेंगे. Just learn it. Like common, वो भी common ones याद कर लो. Like speak हम बार बार यूज करते हैं, तो speak की क्या फॉर्म्स होती है? Speak, spoke, spoken, है ना? Took, take, taken. तो ऐसे just learn what's it one day. Write down only, I will send you. Okay, that, so learn those irregular forms. Rest you have to use ed, so it's not difficult at all. English is very easy language, only you should have some tips to learn. Okay, it's not difficult at all. Only few things you have to keep it in mind, only tips wise. ऐसा सारे rules कोई नहीं याद कर सकता, इतने सारे rules हैं. बस main rule याद रखो and then you can speak easily. Okay, so let's make some examples of it. India had got freedom in 1947. इसकी हिंदी क्या होती है? मिली थी या मिल चुकी थी, ये हिंदी होती है, इसकी एंडिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947. इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिल चुकी थी, या फ्रीडम, आजादी. ओके, वी हैड रेनोवेटेड आवर हाउस few years ago. few years ago मतलब थोड़े टाइम पहले, पास्ट की बात हो रही है. जब सालों पहले की बात करते हैं तब हम हैड लगाते हैं नॉर्मल सेंटेंस में. ओके, अदरवाइज यूजुअली तो वी यूज इट इन डुअल एक्शन. डुअल एक्शन मतलब जब दो एक्शन एक साथ हुए थे, ठीक है, तो हम दोनों जगह हैड नहीं लगाएंगे. ऐसे नहीं बोलेंगे when Avneet had come to the class had already started. You can never use two same helping verb in one sentence. Okay, so what we will do simple past. What is the rule of simple past? Subject and second form.
second form of main verb. Okay, and past perfect the rule same, had plus third form you will use here, had plus थर्ड फॉर्म. तो दो पार्ट में बनेगा आपका ये सेंटेंस. लेट्स टेक लाइव एग्जांपल. जस्ट नाउ इट हैपेंड. जब अवनीत क्लास में आई, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, है ना. सो व्हेन अवनीत केम टू द क्लास, सिंपल पास्ट में केम सेकंड फॉर्म, हैड स्टार्टेड. अब कैसे पता चले कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाना है, कहाँ पे हैड लगाना है? जो एक्शन पहले हुआ है, पहले क्या हुआ था, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, वहां पे हैड लगना है. ये आगे पीछे भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स. बिफोर, ये एग्जांपल आपको सारी ग्रामर बुक्स में मिलेगा, सारी. बिफोर डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड. ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. व्हेन सुरेंद्र अराइव्ड एट द स्टेशन, हिज गर्लफ्रेंड हैड लेफ्ट. ट्रेन भी जा चुकी थी और गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी. ठीक है, क्लियर क्लियर दिस थिंग. सो टू पार्ट्स. जाओ जी लो अपनी जिंदगी. सुनिंदर सेड दिस डायलॉग. ओके, क्लियर all these things. So two, it is dual action and you have to make sentences in two parts in this. Okay, first just remember simple past, one part in simple past, an action which has been finished earlier, you will make it in past perfect. Okay, so now it's your turn to make sentences, and you also make sentences and drop it in the comment. And if you want such detailed videos on grammar, then do subscribe my channel.